Good morning, everyone. So today we are going to see the school of functionalism. In the last class, we also talk about the school of structuralism, which was actually given by Wilhelm Wundt and later modified very well by E.V. Techner. So in the school of structuralism, we talk about consciousness, we talk about mental process. So what happened when structuralism was on its rise? Many psychologists also criticized this particular school of structuralism. Why? Because in the school of structuralism, what was there? The process of introspection is there. Now we learn that the process of introspection is not simple. It will be done by a trained person. Not every individual, not day-to-day individual can use the process of introspection. Okay, why? Because in the process of introspection, let's say you need to analyze about anger. So if you're saying that you're feeling anger, then it's a judgment. Okay, but what you need to do, you need to analyze the emotion generated by the feeling of anger. You need to analyze the sensation coming out of it. You need to analyze the complete mental process coming out of it. So this process is not that much simple. Okay, so psychologists later on discarded this particular method of introspection. And other than this, the process of structuralism, they majorly focuses upon reductionist approach. Okay, right? What is reductionist approach? That elementalism. Break down everything into element. Break down all the mental processes into its element. Okay, so due to these certain factors, the school of structuralism was heavily criticized, and the next school will come, that is school of functionalism. Now, what is the main theme of this particular school? The school of functionalism talk about that how your mental processes actually functions. Okay, structuralism focusing upon mental process breaking down into element, but it is focusing upon that how your mental process functions so that you can adapt yourself to the environment. So this particular school has practical utility. Okay, so let's say for example your mental process, like how your thought, emotions, how your behavior are functioning itself so that you can adapt yourself to the given environment. Okay, so let's say you're crossing a street and there is a huge traffic, a lot of cars coming out or in, and so due to this huge traffic there is a fear response into your body. So that fear response is there so that it can make you alert, it can make you cautious. Okay, so you become alert, you become cautious, and then you will finally respond as per the given environment. Okay, so this is actually the main theme of the school of functionalism. Okay, now major names in the school of functionalism are William James, okay, John Dewey, and James Engel. These three are important names. William James can be said as the forerunner of functionalism. Like Wilhelm Wundt was the forerunner of structuralism, and E.V. Techner was the actual person who read structuralism as a proper experimental one. In the same way, William James was actually a forerunner of School of Functionalism. But the actual founder, the credit of actual founder to the School of Functionalism is given to John Dewey and James Engel. Okay, so I think the overview related to this is clear. Now we will see that what are the antecedent forces behind the rise of this particular school. Okay, so first of all, the theme should be clear. They are talking about the functional utility of your mental process. Okay, they are not saying that break down everything into element. Okay, they are saying that read everything in a holistic manner. Okay, so therefore it also inspired other schools also, like for example a Gestalt school and other school, humanistic school, that we will understand. So what are the antecedent forces? If we talk about, there are two antecedent forces, or there are two early propounders of this particular school. The first one is evolutionary theory. The second one is William James. He actually is the forerunner. Evolutionary theory also inspired the rise of functionalism school. Okay, now in evolutionary theory we are not going to read into so much detail, but you need to know certain fact related to this particular theory. So there are three important names in this evolutionary theory. I hope you have heard about these names also. I think you have heard about Charles Darwin. His survival of the fittest theory is very famous. Okay, Galton, this name is also very, very famous in the field of psychology. Herbert Spencer is also there.
Okay, so what happened? These two persons, Herbert Spencer and Charles Darwin, they talk about fittest, survival of the fittest. Okay, so first of all, we talk about Charles Darwin. According to Charles Darwin, only those individuals who can adapt themselves to the environment would be able to survive. Those who are not able to adapt themselves with the changing environment, they will not able to survive. This is the survival of the fittest theory. ठीक है, कि जो सर्वाइव कर पाएगा वो वही फिट रहेगा. ठीक है, वही जो अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, वही ठीक तरीके से काम कर पाएगा. ओके, तो ये हमारा चार्ल्स डार्विन ने बोला था. इनकी थ्योरी मेजरली फोकसेस ऑन द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास में जो अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा, जो सारी दिक्कतों का सामना कर पाएगा, जो कोर्स को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगा, वो सक्सेसफुल हो जाएगा. जो ये काम नहीं कर पाएगा वो फेल हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपको सब जगह देखने को मिलेगा. ओके, ठीक है. रिलेशनशिप में जो बेटर सोशल इंटरेक्शन कर पाएगा, ओके, एक दूसरे के इमोशन को समझ पाएगा, उसके रिलेशनशिप अच्छे होंगे. बाकी जो नहीं कर पाएगा वो उसके रिलेशनशिप ठीक नहीं होंगे. ठीक है, ओके. सो दिस इज चार्ल्स डार्विन मेजर पर्सपेक्टिव. ठीक है, और यही बात हर्बर्ट स्पेंसर ही बोलते थे. हर्बर्ट स्पेंसर वाज आल्सो कॉन्टेम्परेरी टू चार्ल्स डार्विन. ये भी यही बात बोलते थे. बस अंतर इतना था कि चार्ल्स डार्विन थ्योरी वाज मेजरली रिलेटेड टू बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि बायोलॉजी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है. ठीक है, कोई एनिमल किस एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव कर पाता है, वो अगर वहां पे नहीं कर पाएगा सर्वाइव तो वो किसी और एनवायरनमेंट में चला जाएगा. ठीक है, अगर वहां पर नहीं कर पाएगा तो किसी और एनवायरनमेंट में चला जाएगा. आपने देखा होगा ना, एनिमल्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज दे वांट टू सर्वाइव. ओके, दे वांट टू अडॉप्ट देमसेल्व्स विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. वो अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, इन द सेम वे स्पेंसर ने भी यही बात बोली. स्पेंसर ने बस क्या किया, स्पेंसर की एप्लीकेशन थोड़ी सी ब्रॉड थी. स्पेंसर एप्लीकेशन related to survival of the fittest is broader. Okay, so he also applied the same concept in the field of society, in the field of economics also. Okay, for example, during that time industrial revolution was there. ठीक है, industrial revolution चल रहा था, तो rise of capitalism was there. Okay, तो अगर आपने economics से पढ़ा होगा, there is one type of capitalism, laissez faire capitalism. Okay, so in laissez faire capitalism, free market economy is there. Government control is limited. Okay, so according to the theory of Spencer, he justified the concept of laissez faire capitalism. Okay, he talk about that those people who are able to survive themselves, or those businessmen who are able to adapt themselves with the changing environment, they will survive. Okay, and that survival, if it is at the cost of the weaker one, then it is also ethical, no problem. ओके, तो कोई भी बिजनेस में अगर वो चेंजिंग एनवायरनमेंट की वजह से अपने आप को आगे लेके जा रहा है, ठीक है, तो वो सर्वाइव कर पाएगा. ठीक है, ओके, और भले ही आप वीकर सेक्शन का नुकसान कर दो, है ना. तो यही तो होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर हो रहा है. ठीक है, तो कैपिटलिज्म का एक ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी था. तो इन्होंने इस चीज को जस्टिफाई किया था स्पेंसर ने. ओके, कि ये क्यों होता है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की वजह से होता है. ठीक है, तो कोई भी बिजनेस में जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं, वो अपनी मेहनत की वजह से, अपने रिसोर्सेज की वजह से सर्वाइव कर पाएगा. और वो हो सकता है कि वीकर सेक्शन की कॉस्ट पर हो, वीकर सेक्शन को नुकसान हो. Okay, so these are the theories which was given by Spencer and Darwin, and they are talking about that how you're able to adapt yourself with the changing environment. ठीक है, और यही ऐसी ही कुछ कुछ बात फंक्शनलिज्म में जाके बोली थी. तो ये क्या है, these are the antecedent forces, ये शुरुआत के लोग हैं. ठीक है, और इन्हीं से ही इंस्पिरेशन लेकर फिर फंक्शनलिज्म स्कूल एक अलग से एक बेटर स्कूल निकल के आता है. इन द सेम वे गैल्टन आल्सो फोकसेस ऑन द सेम थिंग. गैल्टन ने बस एक ये बोल दिया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं अलग अलग. ठीक है, जैसे कि चेंजिंग एनवायरनमेंट. ओके, तो मान लीजिए कि मेरा एनवायरनमेंट अलग है, आपका एनवायरनमेंट अलग है, तो मेरे डिफरेंसेस अलग होंगे, आपके डिफरेंसेस अलग होंगे. ओके, गैल्टन टॉक्स अबाउट दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ओके, सो आई विल अडॉप्ट माई सेल्फ विद द एनवायरनमेंट इन अ डिफरेंट वे, यू विल अडॉप्ट योर सेल्फ विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट अलग है, मेरा एनवायरनमेंट अलग है. ओके, इफ अ स्टूडेंट इज बिलोंग टू अ डिसएडवांटेज सेक्शन, then he or she will adopt environment in a different way.
But if a student is coming from a like a better economic background, then he or she adopt himself or herself in a different way. ठीक है, तो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने के लिए. सेकंड चीज फ्रांसिस गैल्टन ने ये भी बोली, जो काफी फेमस है और जिसको आप इंटेलिजेंस की थ्योरी में भी पढ़ेंगे. जब हम इंटेलिजेंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये कंसेप्ट निकल के आएगा. इन्होंने बोला था कि जो इंटेलिजेंस होता है वो इनहेरिटेड होता है, जेनेटिकल अप्रोच था इनका. अभी राइट नाउ तो हम इसको पूरी तरीके से नहीं बोल सकते, लेकिन साइकोलॉजी में एक डिबेट होती है नेचर वर्सेस नर्चर. इंटेलिजेंस इज इनहेरिटेड और एक्वायर्ड, इंटेलिजेंस इज जेनेटिक और बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट. ओके, तो ये इस पॉइंट पे एग्री करते थे कि जितने भी हमारे इंटेलिजेंस ट्रेट होते हैं, जितने भी हमारे मेंटल ट्रेट होते हैं, दे आर कंप्लीटली इनहेरिटेड, दे आर कंप्लीटली जेनेटिक. ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो ये जो थे, फ्रांसिस गैल्टन का पूरा नाम था, ये इन्हीं के कजिन थे. ठीक है, इन्हीं के कजिन थे. तो उन्होंने बोला कि अगर आपकी अच्छी क्वालिटीज है तो आपके जेनेटिक्स पे भी ऐसा रहा होगा. आप ये सारे के सारे इनहेरिटेड क्वालिटीज हैं. ऑल्दो दिस थ्योरी लेटर ऑन डिसरिगार्डेड बाय अदर पीपल, जिन्होंने बोला कि नहीं, इंटेलिजेंस हमारी एक्वायर्ड भी होती है, फिर बाद में दोनों आकर कंबाइन हो जाते हैं. तो वो हम इंटेलिजेंस में पढ़ेंगे. लेकिन ये हमारे कुछ फोरनर हो जाते हैं, ये हमारे कुछ एंटीसीडेंट फोर्सेस हो जाते हैं जो इस पर्टिकुलर स्कूल को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, so these are the evolutionary perspective. The second important name is William James. ठीक है, तो विलियम जेम्स इज आल्सो नोन एज द फोरनर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल. इन्होंने भी इसके बारे में काफी कुछ बातें बोली थी. तो जब विलियम जेम्स थे, तो विलियम जेम्स एक्चुअली क्या है? विलियम जेम्स जो स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ा था, विलियम वुंट और ईबी टेचनर, उनके बीच के हैं. मतलब बीच के यानी कि जब वो अपना काम कर रहे थे तो बीच का इंटरवल इनका था. तो जो ईबी टेचनर थे वो इनके जूनियर थे, विलियम वुंट इनके सीनियर थे. ओके, तो इनका टाइम इंटरवल उसके बीच का था. तो ये दोनों लोगों को देख रहे थे थोड़ा थोड़ा. ठीक है, तो उन्हीं से इन्फ्लुएंस करके इन्होंने काफी अपनी बातें बोली थी. ओके, तो ये इनका ब्रीफ बैकग्राउंड है. फंशिज्म के बारे में इन्होंने बात बोली. फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है इनको अमेरिका में. ठीक है, फर्स्ट क्लास इन साइकोलॉजी एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन्होंने पढ़ाया है. फोकस्ड ऑन द फंक्शंस, इन्होंने फंक्शन से बात की. ठीक है, कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो एक्शन कैसे करता है, उसके पर्पस क्या क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं. ये हमारा मेजर पर्सपेक्टिव था विलियम जेम्स का. अब इन्होंने क्या क्या बातें बताई? इन्होंने हमें मेजरली 4-5 बातें हम पढ़ेंगे इनके बारे में. पहली बात प्रैग्मेटिज्म, सेकंड सब्जेक्ट मैटर, थर्ड मेथड, फोर्थ इज इमोशन, मेमोरी एंड माइंड एंड बॉडी प्रॉब्लम. ब्रीफ में इनको हमें देखना है कि क्या क्या बातें इन्होंने बताई थी. देखिए, पहला देखिए, फर्स्ट प्रैग्मेटिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो विलियम जेम्स ने बताया था. ठीक है, विलियम जेम्स ने क्या बोला था? प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है प्रैक्टिकल यूटिलिटी. इन्होंने क्या बोला था कि हर एक कंसेप्ट की प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए. वॉट एवर नॉलेज यू आर हैविंग, वॉट एवर मेंटल प्रोसेस आर देयर, दे मस्ट हैव प्रैक्टिकल यूटिलिटी. ओके, उन सबके प्रैक्टिकल यूटिलिटी, अगर हम उसको प्रैक्टिकल यूटिलिटी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तभी उसकी वैल्यू है. ओके, तो दिस इज द स्कूल ऑफ प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म का मतलब ही होता है कि प्रैक्टिकल में अप्लाई करना. आप देखेंगे ना, साइंस हमारी क्या होती है? साइंस प्रैक्टिकल, साइंस क्या प्रैक्टिकल कर सकते हो ना. ऐसे ही सारे के सारे कंसेप्ट की प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए. ओके, और इसी को ही हम डिस्कस करेंगे जब हम साइकोलॉजी एज अ साइंस पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर में. तो वहां पर साइकोलॉजी साइंस क्यों है? क्योंकि दोनों में प्रैक्टिकल है, दोनों में प्रैग्मेटिज्म का पॉइंट ऑफ व्यू आता है. ठीक है, तो इसी वजह से साइकोलॉजी क्या साइंस हो जाती है ना. तो इस पॉइंट पे इन्होंने काफी फोकस किया कि जितनी हमारी नॉलेज होती है वो प्रैग्मेटिज्म होती है, उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, अगर वो हमारे काम में आ रही है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अगर हमारे काम में नहीं आती है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे. ओके, बट एवरी कंसेप्ट मस्ट हैव प्रैक्टिकल यूटिलिटी. इन द सेम वे इनका जो सब्जेक्ट मैटर था, स्ट्रक्चरलिज्म वालों का सब्जेक्ट मैटर क्या था? कॉन्शियसनेस. लेकिन वो कॉन्शियसनेस को ब्रेक डाउन करके पढ़ते थे. लेकिन इनका जो सब्जेक्ट मैटर था, इनका सब्जेक्ट मैटर भी कॉन्शियसनेस था. लेकिन ये क्या बोलते थे कि कॉन्शियसनेस को हमें ब्रेक डाउन करके नहीं पढ़ना है. ठीक है, कॉन्शियसनेस को ब्रेक डाउन करके नहीं पढ़ेंगे. कॉन्शियसनेस की फंक्शनल यूटिलिटी होती है. ठीक है, तो कॉन्शियसनेस एक ऐसी प्रोसेस है जो हमेशा चेंज होती रहती है. इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. आपने देखा होगा ना, आप सुबह उठे तो आपकी थॉट प्रोसेस अलग है, फिर आपने तैयारी की घर पे ऑफिस जाने की या कोचिंग पे आने की, तो आपकी थॉट प्रोसेस अलग है. फिर यहाँ पे बैठी हो तो थॉट प्रोसेस अलग है, घर जाकर थॉट प्रोसेस अलग हो जाएगी. तो कॉन्शियसनेस आपका चेंजिंग होता है ना, कि इट्स कीप ऑन चेंजिंग. ओके, एंड योर कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट, माई कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट. ओके, सो कॉन्शियसनेस इज चेंजिंग आल्सो, कॉन्शियसनेस इज पर्सनल आल्सो.
ठीक है, आपका अलग है, मेरा अलग है। ओके, अब कॉन्शियसनेस में क्या है, सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, सब कुछ तो उन्होंने ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया था कि इमीडिएट होगा कि मीडिएट होगा, जो भी सब कुछ आपके एनवायरनमेंट में है सब कुछ कॉन्शियसनेस में आ जाता है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी स्टिमुलाई है, बहुत सारी चीजें आपके ऊपर बम्बार्ड हो रही हैं आपके सेंसेशन के ऊपर, तो आप सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को लोगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इंफॉर्मेशन को आप इग्नोर कर दोगे। तो इन द सेम वे वी कैन से कॉन्शियसनेस इज चूजन आल्सो, हम इसको चूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कॉन्शियसनेस के बारे में बोला और इन्होंने बोला कि क्या होता है, ये इसकी फंक्शनल यूटिलिटी होती है। हम इसको ब्रेक डाउन करके नहीं पढ़ेंगे, हम पूरी की पूरी मेंटल प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि उन मेंटल प्रोसेस की फंक्शनल यूटिलिटी क्या है और हम उसको एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, सो हिज कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्शियसनेस ऑफ टेचनर। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेकर वी ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम। लेट्स से लैंग्वेज। ठीक है, एक लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं। नाउ इन लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू टेचनर एंड अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, okay, so now EB Techner will say break down the concept of language को break down करो। तो break down करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अगर EB Techner के अकॉर्डिंग हमें लैंग्वेज को समझना है तो उसको ब्रेक डाउन करो वोकैबुलरी में, ग्रामर में, ठीक है, नाउन में, प्रोनाउन में, ओके, एक्सेट्रा, ब्रेक इट डाउन अगर आप लैंग्वेज को पढ़ रहे हो तो। बट ऑन द वे विलियम जेम्स क्या बोलेंगे, दैट रीड द फंक्शनल यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज। Okay, how understanding of language is helping you to communicate with the people, how the understanding of language is helping you to interact with the people in the society, okay, how it is helping you to become a good human being, to become a good human being in the society, to solving the issues in the society। ठीक है, ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, फंक्शनल यूटिलिटी हो गई इस पर्टिकुलर कंसेप्ट की, है ना। तो ब्रेक इट डाउन करके नहीं करना है, उसकी फंक्शनल यूटिलिटी को समझना है। ठीक है, ओके, तो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर। और इसी तरीके से अगर हम इसमें भी यहाँ पर देख लें तो माइंड बॉडी प्रॉब्लम अगर हम आते हैं तो माइंड बॉडी प्रॉब्लम के बारे में क्या बोलते हैं विलियम जेम्स और बाकी के जितने लोग भी आएंगे वो क्या बोलेंगे कि माइंड बॉडी प्रॉब्लम, माइंड एंड बॉडी बोथ आर वर्किंग, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं ये इन्होंने नहीं बताया था, लेकिन दोनों अपना अपना काम करते हैं और दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। माइंड आल्सो इन्फ्लुएंस द बॉडी एंड वाइस वर्सा, बॉडी आल्सो इन्फ्लुएंस द माइंड। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरलिज्म वाले थे वो क्या, वो थे हमारे पैरेललिज्म थे, साइकोलॉजिकल पैरेललिज्म। ये क्या है, साइकोलॉजिकल इंटरेक्शनिज्म। ठीक है, ये इंटरेक्ट की बात करें ना, सो दीज आर नोन एज साइकोलॉजिकल इंटरेक्शनिज्म, क्योंकि ये इंटरेक्ट करने की बात बोल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज स्टैंड ऑन माइंड बॉडी प्रॉब्लम। ओके, तो एक तो हमारा ये क्लियर हो गया कॉन्शियसनेस, और ये जो होता है ना कॉन्शियसनेस चेंजिंग, पर्सनल, चूजन, ये इतना डायनेमिक है कॉन्शियसनेस, हमारा स्टैटिक नहीं है, चेंज होता रहता है। इसी वजह से इन्होंने क्या बोल दिया था, कॉन्शियसनेस को एक बेटर टर्म बोल दिया था, इसको बोलते थे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये कॉन्शियसनेस चलता आ रहा है, देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, सो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विलियम जेम्स एंड डेफिनेटली द मेथड इन्होंने जो अडॉप्ट किया था वो मेथड भी इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का मेथड ही अडॉप्ट किया था। बस इन्होंने ये बोल दिया था कि इंट्रोस्पेक्शन का मेथड जो हम अडॉप्ट करेंगे इट इज नॉट एज द मेथड ऑफ विच वाज अडॉप्टेड बाय ईबी टेचनर। इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल लोग भी इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। आप भी इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो अपने कॉन्शियसनेस को कि आप क्या इन्फॉर्मेशन को लेना चाहते हो, क्या इन्फॉर्मेशन को नहीं लेना चाहते हो, आपकी अभी थॉट प्रोसेस क्या है। Okay, so it do not require any trained individual to introspect your consciousness. Okay, normal individual can also introspect. ठीक है, वो नॉर्मल इंडिविजुअल भी कर सकते हैं इंट्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। इसके अलावा इमोशन के बारे में इन्होंने काफी कुछ बताया था। इमोशन को लेकर इनकी एक थ्योरी है अलग से विच विल लीड इन इमोशन एंड मोटिवेशन चैप्टर। ओके, सो देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट नेम, कार्ल लैंज। ये फिजियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने विलियम जेम्स के साथ मिलकर एक थ्योरी दी थी जिसको हम जेम्स लैंज थ्योरी भी बोलते हैं, जेम्स लैंज थ्योरी ऑफ इमोशन। इस पर क्वेश्चंस भी आए हैं पहले यूपीएससी में।
ठीक है, जेम्स लेंस थ्योरी ऑफ इमोशन, इसको हम इमोशन में पढ़ेंगे। ओके, तो ये इमोशन के बारे में इन्होंने क्या बताया था, देखिए पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था, इमोशन को कैसे समझा जाता था, पहले इमोशन को समझा जाता था कि देयर इज वन स्टिमुलस, ओके, एंड देयर इज अ रिस्पॉन्स। Stimulus and response in the medium you will experience. So this is a common sense view. पहले ऐसा माना जाता था कि इमोशन ऐसे होता है कि स्टिमुलस आएगा, स्टिमुलस को आप एक्सपीरियंस करोगे और उसकी वजह से रिस्पॉन्स होगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक बियर को देखा, ठीक है, आपने एक बियर को देखा, ओके, उसकी वजह से आपने कोई भी एक्सपीरियंस इमोशन किया, आपको डर लगा, फियर लगा, फियर आपने एक्सपीरियंस किया और आप रिस्पॉन्स में भाग गए, रन अवे, आप रिस्पॉन्स में भाग गए। ओके, सो दिस वाज द कॉमन सेंस बियॉन्ड इमोशन, स्टिमुलस एक्सपीरियंस रिस्पॉन्स। ओके, बट जेम्स लेंस थ्योरी रिवर्स दिस ऑर्डर। इन्होंने क्या बोला कि ऐसा नहीं होता, फिजियोलॉजिकल अराउजल पहले आता है, उसके बाद फिर हमारा इमोशन आता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि बियर को आप देखोगे, फर्स्ट बियर विल बी देयर, इन्होंने इसको क्या बोला कि पहले आप बियर देखेंगे, बियर विल बी देयर, देन आप जब बियर को देखेंगे तो आपके अंदर एक रिस्पॉन्स आएगा, दैट रिस्पॉन्स विल बी रन अवे, एंड देन ड्यू टू दिस रिस्पॉन्स यू विल एक्सपीरियंस इमोशन, फिर आपके अंदर एक इमोशन जनरेट होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, आप रन अवे, भागना शुरू कर दिया, रन अवे यानी कि आपके हाथों में पसीना आ गया, यही तो रिस्पॉन्स हो गया, फिजियोलॉजिकल अराउजल इज देयर इन द बॉडी। ठीक है, और इस रन अवे की वजह से, भागने की वजह से आपके अंदर एक इमोशन आया, दैट इमोशन इज फियर। ओके, तो ही जस्ट रिवर्स द ऑर्डर, पहले बियर, फियर, रन अवे हो रहा था, फिजियोलॉजिकल अराउजल बाद में आ रहा था, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि फिजियोलॉजिकल अराउजल पहले आएगा जैसे ही आप स्टिमुलस को देखोगे, तो स्टिमुलस, देन यू आर हैविंग फिजियोलॉजिकल अराउजल, एंड देन यू विल हैविंग एंड यू विल एक्सपीरियंस एन इमोशन। तो ये हमारी जेम्स लेंस थ्योरी होती है, जिसको हम इमोशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑल्दो लेटर ऑन दिस थ्योरी वाज आल्सो लाइक मॉडिफाइड, यू कैन से, बाय कैनन बार्ट। कैनन बार्ट भी दो लोग थे, उन्होंने इसको बोल दिया था कि साथ साथ प्रोसेस होती है, तो वो अलग पॉइंट आ जाता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने इमोशन के बारे में बताया था। इन द सेम वे इन्होंने मेमोरी के बारे में बोला कि मेमोरी हमारी क्या होती है, मेमोरी ऐसा नहीं कि हम इसको सिलोज में पढ़ते हैं, एलिमेंट में पढ़ते हैं, मेमोरी भी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, हॉलिस्टिक तरीके से किसी चीज को समझा जाता है। तो आपके अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी भी होगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होगी, जिनको उन्होंने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी बोला था। ठीक है, तो कोई भी आप चीज को याद कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी पूरी मेंटल प्रोसेस जो होगी उसमें इन्वॉल्व होगी। ओके, ऐसा नहीं कि कोई एक पॉइंट, कोई एक एलिमेंट आप उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, सो दीज आर हिज इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म। इस तरह से इन्होंने इनके बारे में बताया था। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको ना एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंटल तरीके से पढ़ने का काम बाकी के लोगों ने कर लिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन दोनों ने, ठीक है, जॉन डेवी, ठीक है, और जेम्स सॉलेंट, इन दोनों ने इसको एक प्रॉपर तरीके से पढ़ा विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, और वहां से ये दोनों ने फंक्शनलिज्म को एक सेपरेट स्कूल बनाया। ठीक है, और इसी वजह से इन दोनों को फाउंडर बोला जाता है फंक्शनलिज्म स्कूल का। तो विलियम जेम्स हमारे हो गए फोर्थ रनर, ये दोनों हमारे हो गए एक्चुअल फाउंडर। अब इन्होंने क्या बोला, जो हमारे जेम्स डेवी थे, ठीक है, जॉन डेवी सॉरी, ये क्या बोलते थे कि जो रिडक्शनिस्ट अप्रोच है स्ट्रक्चरलिज्म का, वो सही नहीं है। ठीक है, हमें इस पर फोकस नहीं करना है, क्रिटिसाइज द रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू साइकोलॉजी। ठीक है, कि जो आपने जो एलिमेंट में उसको क्रिटिसाइज कर दिया, एलिमेंट में जो बांट दिया है साइकोलॉजी को, दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें हम फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम होलिस्टिक तरीके से चीजों को पढ़ेंगे। ओके, तो हॉलिस्टिक तरीके से चीजों को पढ़ेंगे, यानी कि हर एक चीज इन्वॉल्व होती है किसी भी फंक्शन को करने के लिए, है ना। तो इन्होंने क्या बताया था कि पहले क्या होता था, पहले एक थ्योरी होती थी, उसको बोलते थे रिफ्लेक्स आर्क थ्योरी। रिफ्लेक्स आर्क थ्योरी, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ चाइल्ड, अब इस चाइल्ड को एक कैंडी बार की तरफ, कैंडी बार इसने देखा,
चाइल्ड है, एक कैंडी बार देखा, तो चाइल्ड मतलब क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, उसने जैसे ही कैंडी बार को देखा उसने रिस्पॉन्स किया, उसने वहां तक पहुंचने की कोशिश की, रीच आउट करने की कोशिश की, बस खत्म बात। ठीक है, तो ये इतनी बात है, चाइल्ड ने कैंडी बार देखा, स्टिमुलस देखा और वहां पर उसको रीच आउट करने की कोशिश की, एसआर इज देयर। ओके, ये क्या बोलते थे कि सिर्फ इतनी चीजें नहीं होती हैं, अगर उससे कैंडी बार देखा तो उसके माइंड में कुछ एक्सपेक्टेशंस भी आए होंगे, उसके माइंड में कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी आए होंगे। ओके, तो ये सारी उसके माइंड में कुछ थॉट प्रोसेस भी जनरेट हुई होंगी, तो ये सारी प्रोसेस जो होती हैं वो काम करती हैं, सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस काम नहीं करती है किसी भी चीज के लिए। ओके, तो इन्होंने जो एसआर वाला था वो रिजेक्ट कर दिया था, जो जैसे आप देखो कि एसआर हम बिहेवियरिज्म में ही पढ़ते हैं। ओके, तो इसको रिजेक्ट करते हुए उन्होंने बोला कि हमें हॉलिस्टिक सब कुछ देखना है। ठीक है, उसके थॉट, उसके इमोशन, उसके परसेप्शन, हॉलिस्टिक तरीके से हम चीजों को समझेंगे, है ना। इन द सेम वे जो सेकंड वाले थे रॉलेंट, इन्होंने क्या बोला, फंक्शनल साइकोलॉजी, इन्होंने एक अलग से टर्म दिया, फंक्शनल साइकोलॉजी। ठीक है, फंक्शनल साइकोलॉजी क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंटल ऑपरेशन रादर देन मेयर एलिमेंट ऑफ मेंटल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो माइंड होता है ना, माइंड यानी कि हमारी जो मेंटल प्रोसेस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें किसी भी इन्वायरमेंट से अपने आप को अडॉप्ट करवाना है तो उसके लिए हमारी मेंटल प्रोसेस मीडिएट करेंगी, हमारी मेंटल प्रोसेस आगे निकल के आएंगी, तब हम उस इन्वायरमेंट से अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो हमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई नई लैंग्वेज को सीखना है, तो उस नई लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारा माइंड पूरी तरीके से एक्टिवेट होगा, हमारी सारी की सारी मेंटल प्रोसेस एक्टिवेट हो जाएंगी, हमारे थॉट, हमारे परसेप्शन, हमारे अटेंशन, सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगी। सो माइंड इज वर्किंग एज अ मीडिएटिंग फैक्टर, वो एक मीडिएटिंग फैक्टर की तरह काम करता है ताकि आपको आपके एनवायरनमेंट से अडॉप्ट करा सके। ठीक है, और इन्हीं के ही अप्रोच को आप देखेंगे लर्निंग में भी दिखाया जाता है। ओके, लर्निंग जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो आप रोट लर्निंग में फोकस मत करो। ओके, आप उसको बताओ कि कैसे वो अपनी मेंटल प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कैसे एक्टिवेट कर सकता है, यही तो होती है एक्चुअल लर्निंग जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है। दैट इज नॉट एक्चुअल लर्निंग। एक्चुअल लर्निंग कब होगी, जब हम उसको कंस्ट्रक्टिव बनाए। ठीक है, हम उसकी मेंटल प्रोसेस को एक्टिवेट कराएं, दैट इज एक्चुअल लर्निंग, हम उसको प्रैक्टिकलिटी सिखाएं। ओके, तो इस पे जॉन जो हमारे जेम्स रॉलेंट थे वो ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, सो इन दिस वे दीस टू पीपल आर देयर हु एक्चुअली हु फाउंड अ स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म, और इन्होंने बेटर एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से इसको आगे बताया। ठीक है, तो मेन पॉइंट तो हमारे विलियम जेम्स ने दे दिए थे, बस उन्हीं को ही पॉइंट को इन्होंने एक बेटर अप्रोच तरीके से बता दिया। ओके, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फंक्शनलिज्म के कंट्रीब्यूशन बताइए, तो आप इन सब के बारे में 2 या 3 पॉइंट मेंशन कर सकते हो, 15-20 मार्क का आंसर आप आराम से लिख पाओगे। ठीक है, ओके, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आप बता पाओगे।